Good evening, children. This is second class on Indigo by Louis Fischer. Today, I will complete the second part of summary likewise, and within this discussion, I will also explain about the characters. So, last classes we completed were Mahatma Gandhi with Rajkumar Shukla went to Rajendra Prasad house. Rajendra Prasad, who was become Prime Minister, President of India and President of National Congress as well. So, and when they entered their house, they found that he was not there. So, the servant of Rajendra Prasad took them as peasant and they stayed on the ground. And Mahatma Gandhi was not allowed to touch the bucket to take water from the well because this is what they thought he is also belongs to an untouchable society, and this untouchability is a great curse for our country. Not for that today also it exists in many remote villages. So after that, next Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran. तो वहाँ से मुजफ्फरपुर होके जाएंगे चंपारण to obtain a more complete information about condition that Shukla was capable of imparting. राजकुमार शुक्ला को जितना इंफॉर्मेशन दिया है पीजेंट की कंडीशन के बारे में एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में और उन लोग का इंडिगो, तो what Mahatma Gandhi as a genuine and wise leader, he want to know the problems in what details and the real problems behind it. So accordingly he sent a telegram to Professor J.D. Kripanali of Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore Santiniketan School. The train arrived at midnight, 15 April 1917. Kripanali was waiting at station with a large body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in government school. So J.B. Kripanali, another famous Indian freedom fighter. So उसके साथ महात्मा गांधी को शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन में मीट हुए थे. तो वो उसको ग्रैंड वेलकम किए. मैंने स्टूडेंट्स लेके स्टेशन में वेट कर रहा था एंड दैट इज व्हाट इज वेलकम बाय प्रोफेसर J.B. Kripanali, जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट दिया था. Next, it was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to honor a man like me in smaller localities. The Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. Home rule a movement against British government. तो इस मूवमेंट में इन्वॉल्व लोग को कोई हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेड लाइट में आ जाएंगे एंड देन दे विल बी but according to the act of then British government. So इसी हिसाब से महात्मा गांधी को ये जो रहने दिए जो टीचर, ये ग्रेट स्टेप्स हिसाब से माना. The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. महात्मा गांधी आए और उन लोगों ये डिफिकल्ट सिचुएशन में हेल्प करने आए. ये इंफॉर्मेशन मुजफ्फरपुर और चंपारण में चारों तरफ तुरंत फैल गया. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by convents to see their champion. महात्मा गांधी को देखने के लिए दूर दूर गांव से आए लोग, शेयरक्रॉपर्स और ये पीजेंट. Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant groups in court. They told him about their crisis and reported the size of their fees. तो वहाँ पर वो बताया उन लोग कितना फीस लगते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, एवरीथिंग वो लॉयर्स उन लोगों को बताया. According to Gandhi, it was a remarkable thing that a government professional, तो that is what जब महात्मा गांधी वहाँ पर प्रेजेंट हुए तो इसके खबर चारों तरफ चंपारण और मुजफ्फरपुर में स्प्रेड हो गया. लोग देखने आए, मिलने आए, अपना प्रॉब्लम शेयर करने आए. एंड उसके बाद वो जब इंफॉर्मेशन मिला कि वहाँ पर लॉयर्स भी कितने ज़्यादा पैसा उन लोग से लेते हैं और उसका केस का कोई हाल नहीं निकालते. तो दिस इज व्हाट रियली पैथेटिक सीन कि वही इंडियन लॉयर्स
उन लोग भी इंडियन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दैट इज व्हाट रियली। सो गांधी cheated the lives for collecting big fee from the sharecroppers। उन लोगों को इसके चलते भर्त्सना किए। He said, I have come to conclusion that we should stop going to law courts, क्योंकि सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने से ढूंढना है, कोई नहीं सॉल्व करने वाला, ना लैंडलॉर्ड, ना ब्रिटिश गवर्नमेंट, ना कोर्ट। कोर्ट में जाएंगे, लॉयर बहुत सारा फीस ले रहा है, तो ये शेयर कॉपर्स, ये पेजेंट का जो कंडीशन है उसका प्रॉब्लम्स वहाँ बांटते हैं, ये कमते नहीं। तो फास्ट एक गांधी बोला हम लोग वहाँ जाना बंद कर देंगे। Taking such cases to the court does little good, where the peasants are so crushed and fear striking law courts are useless. The real relief of them is to be free from fear. And most of the arable land in the Champaran district was divided into large states owned by Englishmen and worked by Indian tenants। बड़े बड़े जमीन चंपारण में डिवाइड हुआ छोटे छोटे पार्ट में, और उसका मालिक ब्रिटिश लोग हैं, इंग्लिशमैन, और उसमें टीनेंट्स सबसे किराए में, रेंट में कल्टीवेट करते थे इंडियन टीनेंट्स हैं। और ये सिचुएशन में महात्मा गांधी का फास्ट स्टेप्स जो लेना सोचे कि उन लोगों के मन में जो डर है, डर को, फियर को पहले हटाना। एंड दिस इज व्हाट द टिपिकल गांधीयन कैरेक्टर, टू इम्पार्ट द क्वालिटी ऑफ ए लीडर among the members of that group। यही एक लीडर का सबसे मॉडर्न, सबसे एडवांस एंड सबसे यूटिलाइज्ड कैरेक्टर्स होना चाहिए। लीडर, एंशिएंट लीडर्स जो मिस्टेक्स किए सिविलाइजेशन के थ्रू में, पूरा पावर लीडर ने कॉन्सेंट्रेट और सेंट्रलाइज करना, ये रॉन्ग थिंग्स है। अगर वो लीडर नहीं रहेंगे तो वो टोटल पॉपुलेशन हेल्पलेस हो जाएगी। तो महात्मा गांधी एज ए लीडर ये चाहते हैं कि इक्वल पावर, इक्वल स्ट्रेंथ, स्टामिना सबको ऑल मेंबर्स में रहे, उन लोग के अंदर में वो कॉन्फिडेंस लाए। महात्मा गांधी भी एक इंडियन से, वो भी एक लॉयर है। उस टाइम 1000 लॉयर्स तो उस टाइम पटना और बिहार में था, 1000 लोग पटना और बिहार में था, उन लोग कुछ नहीं किया, महात्मा गांधी को क्यों आना था? वो भी इंडियन है, एक लॉयर है, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस और जो तरीका में ये लीड करते हैं, दैट इज व्हाट द मिरेकल्स, द लीडिंग क्वालिटी ऑफ महात्मा गांधी। तो ये थिंग्स वो हम में इम्पार्ट करना चाहते थे, एंड दैट इज व्हाट द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ लीडरशिप दैट वी फाइंड हियर इन महात्मा गांधी, कि महात्मा गांधी की यही क्वालिटी उसको ग्रेट लीडर हिसाब से दुनिया के सामने प्रेजेंट किए। एंड द चीप कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। और ये सब जो टीनेंट्स जिस जमीन में रेंट में करते थे कल्टीवेशन, उसमें मेन क्रॉप्स इंडिगो हुआ करते थे। The landlord compels all tenants to plant 3/20 or 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। This was done by long-term contract। कि उसका 15% जब सिर्फ इंडिगो प्रोडक्ट करेंगे और ये इंडिगो टोटली ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देंगे रेंट के हिसाब से, बाकी में अपना हिसाब से करें। तो ये टोटल प्रोडक्ट उसको दे देंगे और भी फर्टाइल लैंड में। गांधी दैट इज व्हाट द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ देम। ये कैसे प्रॉब्लम्स हैं? शेयरक्रॉपर्स अरेंजमेंट वाज irksome टू द peasants। ये सब बहुत उन लोगों के पास दर्द भरेगा। कैसे? एंड मेनी साइंड विलिंगली, बहुत लोग उसको अपना मन से साइन किया। Those who resisted, जो नहीं साइन करना चाहते इस सिस्टम में, engaged loyalists। The landlord hired thugs। thugs means लाठियाँ, जो डंडा पीटते हैं। And meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back। And this is the climax of this chapter। कि प्रॉब्लम्स क्या है? वो 15% इंडिगो टैक्स हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट करेंगे और टोटली गवर्नमेंट को दे देंगे, बाकी रिमेनिंग 85% लैंड में उन लोग अपना पेडी व्हीट एज द डिमांड। बट इसका ये 15% प्रोडक्ट करने के लिए उसका बाकी जो 85% उसका 50% से ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाते थे ये इंडिगो प्रोडक्ट करने के लिए। ठीक है, अभी प्रॉब्लम्स क्या हुआ कि इसी टाइम हम लोग इंडिगो प्रोडक्ट कर लिए और जर्मन सिंथेटिक मैकेनिकल इंडिगो बना दिया, जिसका कॉस्ट बहुत कम हो गया। तो अभी इसको ये 15% जो इंडिगो प्रोडक्ट किया वो गवर्नमेंट लेना मना कर दिया।
मना कर दिया, उसके बदले में पैसा मांगा। तो गवर्नमेंट को अगर वो पैसा देंगे, उसका ऑलरेडी उसमें 50% से ज़्यादा अपना कैपिटल इन्वेस्ट हो गया, अभी उसको नहीं, उसके बदले में घर में जो 50% बचा है उसको भी दे देने के लिए बोला, इंडिगो उसको रख ले। ये पीजेंट फार्मर लोग इंडिगो रख करेगा क्या? तो कुल मिलाकर उन लोग को एकदम बेगर लेवल्स में ला दिया, एंड दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम, कि लोग पैसा नहीं देना चाहते। वो साइन जो साइन किया उसको देना पड़ेगा। तो एट दिस पॉइंट यहाँ पर प्रॉब्लम्स और क्लियर। व्हाइल दिस वाज गोइंग ऑन, द लैंडलॉर्ड्स केम टू नो अबाउट द केमिकल इंडिगो बीइंग प्रिपेयर्ड इन जर्मनी। इट वाज ए ब्लू कलर dye made with chemicals. They started demanding money from the poor peasants in order to cancel their agreements, as they no longer required the indigo plantations. The sharecropper system was very annoying, so many of the peasants paid for the cancellation of the agreement. But as the news about synthetic indigo spread and reached uneducated peasants, they started demanding their money back. उन लोग अपना पैसा रिटर्न, बहुत लोग डर से मान के या प्रॉफिट से मान के या बिना समझ के पैसा दे भी दिया था, बट जब पता चल गया ये सिंथेटिक इंडिगो के बारे में, तो उन लोग अपना पैसा रिटर्न मांग रहा था। कि ऐसी एक सिचुएशन में हुआ कि साल भर उन लोगों के पास 1 रुपया नहीं रहेंगे। इसके फिर प्रॉब्लम्स को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 50% जमीन में इंडिगो प्रोडक्ट करने के लिए उन लोग के टोटल कैपिटल का 50% खर्चा हो जाता था, और उसको गवर्नमेंट को टैक्स हिसाब से देना पड़ेगा, ताकि रिमेनिंग जो 85% में पेडी व्हीट करेंगे और वो अपना रहेंगे। बट ये प्रोडक्ट होने के बाद जब पता चला कि जर्मन सिंथेटिक इंडिगो बना दिया सस्ता वाला, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके बदले में पैसा ले लिया। बहुत लोग नहीं जान के दे दिया। बाद में जब पता चला ये न्यूज कि ये इंडिगो वैल्यूलेस है, ये कहीं बेच नहीं सकता, तो लोग जो पैसा दे दिया वो डिमांड कर रहे हैं रिटर्न, और बाकी लोग देने के लिए मना करते हैं पैसा। ये हालत में, क्योंकि उसको भी इंडिगो राख लेगा और जो पैसा है घर में उसको भी दे देंगे, साल भर लोग चलेंगे कैसे? दिस इज व्हाट द क्रिटिकल प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसी टाइम महात्मा गांधी आए। कोई ऑप्शन नहीं, अगर लॉयर के पास जाए पैसा लेते हैं, वो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकालता। सो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स में फंसे हुए पीजेंट के उस सिचुएशन में महात्मा गांधी वहां पर पहुंचा। At this point, Gandhi arrived in Champaran. He began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of the British Landlord Association. Secretary के पास मिला, वहाँ पर जितने लैंडलॉर्ड था ब्रिटिश लोग, उन लोगों का जो एसोसिएशन है उसका सेक्रेटरी से मिले। The secretary told him that they could give no information to an outsider. वो तो सीधा मना कर दिया इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि महात्मा गांधी आउटसाइडर था। He came from Gujarat and this is Bihar. Gandhi answered that he was no outsider. Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirhat division in which the Champaran district lay. The commissioner, Gandhi reports, proceeded to bully him and advised him forthwith to leave Tirhat. But वहाँ का कमिश्नर क्या बोला? टिरहाट डिस्ट्रिक्ट छोड़ के चले जाने की, हेल्प तो किया नहीं, छोड़ के जाने के लिए हुआ। So next, up to these problems, you I think clear what happened with the peasant of Champaran. Gandhi did not leave, वो छोड़ के गया नहीं जब कमिश्नर। Instead, he proceeded to Motihar, the capital of Champaran. Champaran के तरफ आगे बढ़ा। Several lawyers accompanied him at the railway station. A vast multitude greeted Gandhi. He went to a house and, using it as a headquarters, continued his investigation. A report came in that a peasant had been maltreated in nearby village. उसी टाइम वो मतिहार में रहा, वो छोड़ के नहीं गया। उसी टाइम एक खबर आया कि एक पीजन को बहुत खराब बेरहमी से पीटा। तो गांधी क्या किया? Decided to go and see. The next morning he started out on the back of an elephant, because elephant and horse was the only transportation at that time. And he, for the remote areas, he had not proceeded far when the police superintendent messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. जब वो ज़्यादा दूर नहीं पहुंचा था, तभी पुलिस कमिश्नर का मैसेंजर आके उसको रिटर्न जाने के लिए बोला। Gandhi complied. The messenger drove Gandhi home, where he served him with an official notice to quit Champaran immediately.
गांधी को नोटिस मिला कि वो चंपारण छोड़ के चले जाए. गांधी signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. उसमें वो लिख दिया कि वो ऑर्डर डिसोबे कर रहा है, मतलब वो चंपारण छोड़ के नहीं जा रहा है. Though Gandhi was threatened by the commissioner, he did not leave the place. He went to Motihar and that's the problem he faced there. Next, what happened? In consequence, Gandhi received the summon to appear in the court the next day. Next day उसको कोर्ट में बुलाया. All night Gandhi remained awake. रात भर वो जागे रहे. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. Rajendra Prasad को टेलीग्राम किया आने के लिए. He sent instruction to the ashram. और एक मैसेज लिखा लेटर आश्रम में अहमदाबाद जहाँ पर वो रहते थे. He wrote a full report to the viceroy, that is the head of British government in India at that time. At that time इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का हेड हुआ करते थे वाइसरॉय. तो उसको एक पूरा रिपोर्ट भेज दिया कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, इंडियन लैंडलॉर्ड एंड लॉयर्स कैसे उन लोग पीजेंट को वहां पर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इस पर टोटल रिपोर्ट दे दिया. मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहार ब्लैक विद पीजन. दूसरे दिन सुबह पूरा मोतिहार में किसान लोग का भीड़. दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका. उन लोग इसका इतिहास नहीं जानते थे. साउथ दे हैड merely heard that a महात्मा who wanted to help them was in trouble with the authorities. उन लोग को इतना पता था एक महात्मा ग्रेट सोल उन लोग को हेल्प करने आया था, पर वो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और उसी को हेल्प करने के लिए पूरा मतिहार, चंपारण और बिहार का लोग जमा हो गए थे. The spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. और यही गैदरिंग फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जमा हुए, जिसमें वो लोग डर से बाहर निकल के आए, एक इमोशनली अटैच्ड एंड यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट द इविल फोर्स. दैट इज व्हाट द फर्स्ट टाइम जो महात्मा गांधी का फर्स्ट विश था कि उन लोग अंदर का डर को हटाना. दैट इज व्हाट. Next, the officer felt powerless without Gandhi's cooperation. But उस टाइम ऑफिशियल कुछ इतना लोग के अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, तब महात्मा गांधी जो ये क्राउड को कंट्रोल कर सकते हैं. He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. सबकी तरफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ भी एंड पेजेंट की तरफ भी. तो politely हो, he was giving them concrete proof that their mighty thought to dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास टाइम वो प्रूव कर दिया कि इंडिया अगर चाहे तो उसको कितनी भी सुप्रीम अथॉरिटी उसका अगेंस्ट में स्टैंड हो सकते हैं, फाइट कर सकते हैं. उन लोग अनचैलेंज्ड अथॉरिटी जो 100 इयर्स से सोच के आया था, दैट इज रॉन्ग, प्रूव्ड बाय महात्मा गांधी. और इसी थिंग्स में वो इलिटरेट पीजेंट के अंदर में एक कॉन्फिडेंस रिटर्न लाए, फियर को हटाए. द गवर्नमेंट वाज baffled and that is the great quality of Mahatma Gandhi as a leader. That is to give confidence, to help them to come out from the fear, to give strength, to impart the quality to lead themselves. This is the quality of a leader that you find here. The government was baffled. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superior. Judgment सुनाई नहीं दे पाया उस दिन इतना. एंड apparently उसमें क्या हुआ उस दिन, अथॉरिटी उसको सुपेरियर अथॉरिटी की तरफ जजमेंट को सेंड कर दिया. Next, Gandhi protested against the delay. He read a statement pleading guilty. He was involved, he told the court, in a conflict of duties. On the one hand, and not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. He disregarded the order to leave, not for want of respect of lawful authority, but in obedience to the higher law power, being the voice of conscience. He asked the penalty due. The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess. 2 घंटे का ब्रेक के बाद वो अनाउंस करेंगे जजमेंट. And asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. गांधी को उसको बेल के लिए नोटिस मांगा, गांधी ने ही दिया, फिर भी जज उसको छोड़ दिया क्योंकि पब्लिक पावर इज द अल्टीमेट पावर. नेक्स्ट,
When the court convened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. जजमेंट सुनाने के लिए मना कर दिया और उसको रहा कर दिया कि वो लिबर्टी के साथ वहाँ रहे। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज बाबू, मौलाना मजूल हक and several other prominent lawyers had arrived from here. They conferred with Gandhi what would they do if he was sentenced to prison. Gandhi asked why. The senior lawyers replied they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. इसीलिए उन लोग महात्मा गांधी के पास आए थे लीडर हिसाब से। They conferred with Gandhi. They would, what would they do if he was sentenced to prison? उसको अगर जेल हो जाएगी तो उन लोग क्या करेंगे? Gandhi asked why. The senior lawyer replied they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. कोई नहीं रहेंगे एडवाइस करने के लिए और उन लोग घर चले जाएंगे। What about the injustice to the CL coppers? वो बोला मेरे बारे में नहीं सोचना है, अगर नहीं रहेंगे कोई नहीं आएंगे, बट ये CL coppers के बारे में सोचो जिन लोगों को सोचना चाहिए तुम लोग को, lawyers को भी motivated, and that is the third most important quality of Mahatma Gandhi as a leader, to inspire others members of that community. Even the lawyers of here, राजेंद्र प्रसाद इतना बड़े बड़े लॉयर था, उन लोग तो कोई इनिशिएटिव नहीं लिया था, बट उन लोग को इंस्पायर करके ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का अगेंस्ट में लड़ने के लिए ये बट एनकरेज किए महात्मा गांधी। तो दैट इज व्हाट एन इंस्पायरिंग क्वालिटी ऑफ ए ग्रेट लीडर। Gandhi demanded the lawyers withdraw to consult. Rajendra Prasad has recorded the offshoot of their consultation. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger. राजेंद्र प्रसाद और उसके ग्रुप बाकी सब लॉयर सोचे कि ये तो एक अननोन पर्सन है, बाहर से आए हुए हैं, एंड इट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन, फिर भी वो जेल जाने के लिए रेडी है फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बट आल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दिस पीजेंट who should go home, it would be shameful desertions। तो राजेंद्र प्रसाद क्या बोला कि बाहर से आए हुए लॉयर जो इस पीजेंट के लिए जेल जाने के लिए रेडी है और हम लोग किसी जिला किसी एरिया का है फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, दैट इज व्हाट रियली शेमफुल फॉर द लॉयर। राजेंद्र प्रसाद उन लोग को सबको इंस्पायर किया। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail। सब बोला हम लोग एक साथ जेल जाएंगे, और इतना लॉयर को एक साथ जेल में भर के रखे इतना ताकत तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी नहीं था। द बैटल ऑफ चैंबरलेन इज ओवन। आज हम लोग ऑब्वियसली सब लॉयर एक साथ हो गया तो जीतेंगे। He exclaimed that he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest। Divide के ग्रुप में, that is another matter। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। Civil disobedience had triumphed the first time in modern India, और यही फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़के जीते। Next, Gandhi and the lawyer now proceed to conduct a far-flung inquiry into the grievance of the farmer. Disposition by the about 10,000 pages were written down and notes made on their evidence. Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of the investigator and vehement protest of the landlord। ये एक कमीशन बैठाया गया था, ये जो इनजस्टिस बना हुआ उसके अगेंस्ट में, एंड उसमें महात्मा गांधी एज ए मेंबर था। उसमें 10,000 पेजर का ये सॉरोफुल कंडीशन को उसमें डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। एंड देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, इन जून Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the lieutenant governor, and before he went he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return। Gandhi had 4 protracted interviews with the lieutenant governor too। As a result, appointed an official commission of inquiry into the Indigo sharecropper situation। The commission considered the landlord's government official and Gandhi as the sole representative of the peasant। And in June, Gandhi was called up to the that is what happened। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits। 7 months continue Champaran में रहा। The visit undertaken casually on the
entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. वो सोचा था कि कुछ दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, इसीलिए कोलकाता होके पढ़ना होके घर जाएंगे, बट वहाँ पर नियर अबाउट 1 year उसके लाइफ में चले जाएंगे, सोचा नहीं था. The official inquiry assembled a crushing amount of evidence against the pig planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasant. But how much must we pay? They asked Gandhi. Next, after that, I am going, but summarize from it. उसके बाद जब उसको पूरा एविडेंस गवर्नमेंट के पास प्रेजेंट हुआ है, महात्मा गांधी जीते केस को, फाइनली गवर्नमेंट डिसाइड कि कितने पैसा उन लोगों को रिटर्न दिया. ये द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ महात्मा गांधी एज ए लीडर रिफ्लेक्टेड हियर. द peasant demanded 100% रिफंड, पूरा पैसा रिटर्न मांगा. महात्मा गांधी बोला 100% रिफंड नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल डिमांड करेंगे तो ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट गुस्सा आ जाएंगे, वो लैंडलॉर्ड्स. नेक्स्ट महात्मा गांधी जब नहीं रहेंगे वो लोग रिवेंज लेंगे. तो ये भी नहीं करना है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस कर दो, उसको गुस्सा. ऐसा एक सस्टेनेबल बैलेंस चाहिए था महात्मा गांधी एज ए ग्रेट लीडर, क्योंकि उन लोग के साथ ही पीजान को रहना है. महात्मा गांधी तो कल चले जाएंगे. सो वो डिमांडेड, महात्मा गांधी डिमांडेड 50%, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड विथ 25%, and Mahatma Gandhi finally settled the matter. Peasant 100% पैसा रिटर्न मांगा, महात्मा गांधी 15% अपील किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास. ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने विलिंगनेस में 25% देने के लिए एग्री हुआ, और महात्मा गांधी वहीं पर सेटल कर दिया. बहुत पीजेंट उसके ऊपर गुस्सा हो गया था, लेकिन महात्मा गांधी ये चाहते थे एक परमानेंट सेटलमेंट, पीजेंट ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ना गुस्सा हो जाए. अपना फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी के पास बैंड हो रहा है, अपना विलिंगनेस में पैसा रिटर्न दे रहा है, यही सबसे बड़ा बात है. इन लोगों को कॉन्फिडेंस लाना था. एंड दिस इज द फोर्थ मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ महात्मा गांधी एज ए ग्रेट लीडर, टू क्रिएट ए बैलेंस एंड सस्टेनेबल स्टेट, जो महात्मा गांधी चाहते थे. And this is what the basic difference between Mahatma Gandhi and the right wings and left wings. That is what जो सुभाष चंद्र बोस के साथ हुआ था. तो that is another matter, historical matter. Mahatma Gandhi का fourth important. After that, the last part of the story tells about how Mahatma Gandhi give a details problems of Bihar, about educational problems, medical problems. He even started medical teams, started many schools in Bihar. He taken fund from his ashram. He called his son and wife there to serve the people. क्योंकि उसको लगा ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स को मेन जड़ ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स पॉपुलेशन में है, इलिटरेट पॉपुलेशन, अनहेल्दी सिचुएशन. दैट इज व्हाट अनटचेबिलिटी, ट्रेडिशनल जो इंडियंस ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स था. तो ये सब प्रॉब्लम्स हटाने के लिए स्कूल स्टैब्लिश किए, मेडिकल्स रनिंग मेडिकल पर्सनल को वहाँ पर अपॉइंट किए, जिन लोग घर घर जाकर ट्रीटमेंट करते थे. एंड दिस इज द वेरी इनिशिएटिव टेकन बाय महात्मा गांधी. दैट इज व्हाट गिवन इन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, एज ए ग्रेट लीडर टू रूट आउट द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द रूट ऑफ द प्रॉब्लम्स. रूट प्रॉब्लम्स के जड़ में जाकर प्रॉब्लम को खत्म करना. दिस इज व्हाट द फिफ्थ and most what last problem, what quality of Mahatma Gandhi is a great leader given here in the story. So thank you. This is what the chapter completed here.